student front follower. Today we'll learn about Augustan age. Augustan age is you can say that it is named with one of the Roman emperor Augustus. So round about 43 BC, this emperor he made lot of progress in culture, literature, art, music, like these activity in like these field he made a lot of progress. So the writer of the new classical era, new classical age, they were quite influenced from the Augustus age, and they tried to copy the style in art, like culture. You can say that all artists, whether they belong to literature or poetry, drama, or they belong to painting, so they tried to imitate the work of Augustus age emperor. So emperor age around about 43 BC, before Christ. So that emperor who lived around about 43 BC, and he made a lot of progress. These people they influenced from the work and the way of writing style and their work, because that was a classical style. Classical means a grand kind of style. So they influenced from that style and they try to imitate. So unanimously people named that classical age. Classic means something wonderful. So they try to copy the style of the Augustan age. So write about the name of the people. They were very prominent in the age of the Augustus, Prince or Emperor Augustus. Virgil, Homer, and Ovidian style I told you. So these were very prominent poets, writers, and they were working well. And unanimously, people are agreed that they were very prominent and very well-known people. So people like Virgil, people like Horace, and people like Ovid. People say that Alexander Pope tried a lot to imitate the work of Virgil and Homer. They tried to copy, and even they tried to imitate their work. Even they tried to translate the work of the Horace and Virgil. So Horace, Virgil, or you can say Homer. So they tried, and he even had a company of two friends, Phantom and Brooms. So along with his friend, he tried to copy Iliad and Virgil work, Aeneid. So like these work he tried to copy, but he could not fulfill all the requirement of that translation. As Shakespeare said, that people are copying, but they are not conveying the full sense. Whenever something is translated from one language to another language, originality been lost. So the message you get in original text, the message you are producing in the new translation, exact message is not being conveyed according to the rule, norms, language of the first language. So when you translate from one language to another language, totally it becomes sometime it becomes ridiculous as well. So like one of the character in one of the Shakespeare's comedy, he say that there was a person, he was just like when somebody translated work, it becomes, he just compared it with S. So you just been translated, he says in his work that you've been translated. So let's see. So today we are going to discuss age of Dryden. We'll see we'll see points related to this age of Pope, and Essay on Man. Essay on Man by Alexander Pope. So this is the work by Alexander Pope. Maybe they ask that the Essay on Man. So you will say that it has been written by Alexander Pope. Okay, then a little knowledge is a dangerous thing. Who said? He said, "So charm strike the sight, merit win the soul." So like these witty quotes written by the Alexander Pope. चार्ल्स टू जब आया है, तो चार्ल्स टू के आने के साथ साथ जितनी भी प्योरिटन और जितना रिलीजियस सेंटर्ड जो एक अप्रोच थी वो टोटली ख़त्म होती है. Charles too, he was influenced from the French writers, and he studied French writer. He remained in France, and over there he influenced from the writer and way of
the writing and style of the writing he influenced, and he started reading. And even when he comes back, lot of writer from the French, France, they also come with him, because some of the writer I told you, they just ran away when there was a government of the Puritan, because Puritan, they just made them to run away from the country for what they were imposing, some rules and regulation. They are saying that you have to do this or that. They were even saying that if you don't want to write, you should write poetry on the Christ and Virgin Mary, like that. अगर पोइट्री करनी है तो वो आपने क्राइस्ट पे करनी है, चर्च के रूल को फॉलो करना है, और आपने रिलीजियस वर्क करने हैं. हम सन ऑफ गॉड हैं, और हमारी ये ड्यूटी है कि हम ट्रू जो रिलीजन है गॉड का, वो यहाँ पे इन्फोर्स करें, और गॉड का हुक्म चलेगा, और हम उसके इन जो रूल्स हैं वो यहाँ पे लागू करेंगे. ये जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं, या जितने भी प्ले राइट हैं, जितने भी ये स्टेज डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये ट्रू फॉलोवर होते हैं किसके, ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हैं किंग और प्रिंसेस को. तो ये उनके फॉलोवर होते हैं, तो हमें ये भी अच्छे नहीं, ये ट्रू ऑफ सन ऑफ गॉड नहीं होते, तो वो उनको भी वहाँ से भगा देते हैं कि स्टेज ड्रामा बंद कर दें. जैसे गवर्नमेंट आई थी जब तालिबान की, तो उन्होंने सारे गाने वाले जो हैं भगा दिए थे. तो चार्ल्स II जैसे ही आया, तो वहाँ पे क्या साइंटिफिक इंक्वायरी आई है, डेवलपमेंट आई है, ठीक है, आज़ादी दे दी, लिबर्टी आ गई, एमेंसिपेशन आ गई, डेवलपमेंट आ गई, प्रोग्रेस आ गई. साथ साथ एक चीज़ और भी हुई कि जब ये सारी चीज़ें आई, तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि वलक्चुअसनेस, ल्यूडनेस, लक्शरीज, सेंशुअल, सेक्सुअलिटी, ये सारी आ गई, क्योंकि वो खुद फ्रांस से आया था, इन्फ्लुएंस था, 1000+ मिस्ट्रेस थी उसकी, और इस तरह बहुत से लेजिटिमेट उसके बेटे भी थे, और कोई भी उसका लेजिटिमेट बेटा नहीं था. जब उसकी डेथ हुई तो मैंने उससे आपको बताया कि उसके पास कोई लेजिटिमेट बेटा नहीं था. फिर जेम्स II जो उसका ब्रदर है, उसको फिर अल्टीमेटली उसकी जो गवर्नमेंट है वो उसके हिस्से में आती है, लेकिन वो कुछ साल ही उसको रीन कर सका, रूल कर सका. अल्टीमेटली उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि ये खुद कैथोलिक है. कैथोलिक लोगों को उस वक्त बड़ा दूर रखा जाता था कंट्री से, और उनको एक तो लंदन आने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है, उनको कुछ माइल्स अवे रखा जाता था. अलेक्जेंडर पोप जो है उसने भी आइसोलेट लाइफ गुजारी है, और वो भी एक रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करता था. तो दे पीपल डू नॉट लाइक हिम, एंड ही रिमेन्ड आइसोलेटेड प्लेस. ठीक है, तो यही पोजीशन इस तरह की, जैसे हमारे कुछ लोगों को सेक्ट को लाइक नहीं करते, तो वो बड़े डिप्राइव्ड लोग थे कैथोलिक. इवन कैथोलिक को गवर्नमेंट में जाने की इजाज़त नहीं है, लंदन जाने की इजाज़त नहीं है. ये कोई कॉन्स्पिरेसी कोई यहाँ पे ना क्रिएट कर दें. बहुत सारी फाइट भी की हैं रोमन कैथोलिक के साथ. ये जो जितना भी एरिया है इंग्लैंड का, ज़्यादा क्या प्योरिटन है, जबकि आप आयरलैंड के लोग देखें, स्कॉटलैंड के कुछ लोग देखें, तो वो ज़्यादा क्या रोमन कैथोलिक चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं. तो चार्ल्स II के आने के साथ साथ मैंने बताया कि जहाँ डेवलपमेंट आई, जहाँ पे स्टेज खुल गए, जहाँ पे ड्रामा खुल गए, जहाँ पे आज़ादी आ गई, एमेंसिपेशन आ गई, लिबर्टी आ गई, गुडनेस आ गई, प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुई. पीपल ही हैज़ पेव्ड द वे फॉर द ड्रामेटिस्ट, राइटर, प्ले राइट, पोएट, प्रोज राइटर्स, पेंटर्स लाइक दिस. जितने भी आर्ट से ताल्लुक़ रखते थे लोग, वो डेवलप हुए. लेकिन उसके साथ साथ वो क्या चीज़ लेके आया, वलप्चुअसनेस, सेक्सुअलिटी, मॉडर्निटी, सेकुलर स्टेट, और बहुत सारी चीज़ें जो है. खुद भी वो एक अय्याश आदमी था. तो प्योरिटन को रिप्लेस किसने किया? चार्ल्स II ने. चार्ल्स II जैसे ही आया, प्योरिटन जो है वो रिप्लेस हुए, और मोनार्की जो है वो रिस्टोर्ड हो गई. ठीक है, और लोग जो हैं वो भी किसी हद तक उन्होंने पीपल बिकम हैप्पी. क्यों? कि वो आज़ादी जो है वो ख़त्म हो गई थी उनकी. पीपल बिकेम हैप्पी. जो मेजॉरिटी है वो लोग खुश हो गए कि उन्होंने इतनी, मज़हब के अंदर फिर रिस्ट्रिक्शन तो होती है. प्योरिटन्स आइडियल्स वर ब्रोकन. ये सारे जो पॉइंट है ये लिखने वाले हैं. प्योरिटन आइडियल्स, ये स्नैपशॉट ले लें. आइडियल्स वर ब्रोकन, स्ट्रिक्ट मॉरल्स एंड डिसिप्लिन वर डिफीटेड. ये सारे डिसिप्लिन जो हैं डिफीट हो गए. ठीक है, न्यू फ्रिवलिटी, लूजनेस, फुप्री वर इंट्रोड्यूस. यानी ल्यूडनेस आ गई, लक्शरीज आ गई, एमेंसिपेशन आ गई, लिबर्टी आ गई, सेकुलरिज्म आ गई, और डेमोक्रेसी दूसरे लफ्ज़ों वर इंट्रोड्यूस. राइटर पोएट स्टार्टेड टू इमिटेट फ्रेंच. अब इन लोगों ने क्या किया? फ्रेंच राइटर को इमिटेट. जो फ्रेंच से आया था, फ्रांस से आया था, तो फ्रांस के राइटर्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए फिर. देयर वाइसेस, और जो वो लक्शरियस थे, सेकुलर थे, मॉडर्न थे, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज थी उनके पास, लव था, रोमांस था, उनका सारा कल्चर जो है इंग्लैंड में आ गया. इंस्टेड ऑफ शेक्सपियर एंड एलिजाबेथन जो अप्रोच थी, उसको छोड़ के लोगों ने किसको? फ्रेंच का जो रूल था,
फ्रेंच के जो राइटर्स थे उनके रूल्स नॉर्म्स के मुताबिक लिखना शुरू कर दिया और छोड़ दिया किसको, एलिजाबेथन और शेक्सपियरन जो स्टाइल था उसको छोड़ दिया। ये पॉइंट सारे जो हैं लिखने वाले हैं। लेटर रियलिज्म, प्रिसाइसनेस, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल्स वर इंट्रोड्यूस। अगर आप देखें पॉप को पढ़ें तो पॉप कैसे आर्गूमेंट देता है, चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल, देयर प्रिटी आइज रोल, चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल, हीरोइक कॉपलेट। इसको कहते हैं हीरोइक कॉपलेट। अगर दो लाइन्स जो हैं वो आपस में राइम्ड भी हों, दो लाइन अगर आपस में राइम्ड भी हों और वो क्या करें आपस में राइम्ड भी हो और दो लाइन में हों तो उसको कहते हैं हीरोइक कॉपलेट। कॉपलेट इंटेलेक्चुअल स्टाइल्स वर इंट्रोड्यूस, सिंपल लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस एंड वर्स रादर देन वन एट वन फॉर वर्स, vices rather than virtues, later on the simple language for whole some reason। यानी क्या, यानी वाइसेस रादर देन वर्च्यू, वर्च्यू की बजाय जो जितनी भी प्योरिटन वैल्यूज़ थी उनकी बजाय जो है वाइसेस को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाता है। ड्राइडन सुप्रीम्स मास्टर ऑफ रेस्टोरेशन पोइट्री, रेस्टोरेशन पोइट्री का जो सबसे ग्रेट राइटर है वो ड्राइडन है। ड्राइडन के बारे में कुछ कॉल अक्सर आ जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में W.H. ऑर्डन कहता है, W.H. ऑर्डन ने इसकी तारीफ की, क्रिटिक है, पोएट है। W.H. ऑर्डन इसके बारे में कहता है कि मास्टर ऑफ द मिडल स्टाइल, मास्टर ऑफ द मिडल स्टाइल, स्टायर का मास्टर था। यानी इसने स्टायर को आगे बढ़ाया और स्टायर इससे फिर आगे पॉप के पास आया, जॉनसन के पास आया, लेटर राइटर्स जो हैं उसने इनसे उन लोगों ने स्टायर सीखा। ड्राइडन की जो एज है वो लिख लें, 1663 से लेके 1700 तक का जो एज का टाइम है, पूरी एज जो है इससे डोमिनेट इसने किया है। इसको कहते हैं डोमिनेटेड पोएट है, इसने डोमिनेट किया है इस एज को। उसके बाद इसका फर्स्ट प्ले था वाइट गैलेंट, 1663 में लिखा है वाइट गैलेंट। वैसे तो उसने पहले ही लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन जो उसका डोमिनेट, जिस एज को उसने डोमिनेट किया वो उन्होंने कह दिया कि 1663 से 1700 तक उसका टाइम है। तो ये ज़रा नोट कर लें, वाइट गैलेंट, ये भी इसका वर्क है। पोएट लॉरेट रहा है, पोएट लॉरेट, LAURET, ठीक है, पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट जिसको सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है स्पेशल ओकेजन के लिए, जितने भी वो परफॉर्म करते हैं पब्लिक लेवल पे, वो ये करता था कंडक्ट, तो इसको कहते हैं पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट रहा है 1668 में, ठीक है। उसके बाद इसने लिखे हैं रिलीजियस पीसेस लिखे हैं और फैबल्स लिखे हैं, एपिग्राम्स लिखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स लिखे हैं भाषाओं के लिए, प्रोलॉग्स लिखे हैं। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द स्टायर इन द इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में स्टायर का कंसेप्ट जो है ये लेकर आया। ही यूज द सेट्रिकल, रियलिस्टिक एंड हीरोइक कॉपलेट। अब देखें, हीरोइक कॉपलेट ये लेकर आया और इसने इंट्रोड्यूस करवाया, और लेटर पॉप जो है उसने इसको अपने वर्क में यूज़ किया। कहता है ब्यूटी इन द वेन्स, देयर प्रिटी आइज मेट रोल, चार्म स्ट्राइक द साइड बट मेरिट विन द सोल। अब रोल और सोल जो है वो दोनों क्या हैं, राइम्ड हैं। क्या है, राइम्ड है। इसको कहते हैं हीरोइक कॉपलेट। हीरोइक कॉपलेट कब बनता है, जब दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में राइम्ड होंगी, तो वो क्या बन जाएगी, रेप ऑफ लॉक से लिया गया, ठीक है। ही इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड का मतलब होता है लिबर्टी, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, उसको कहते हैं इमेंसिपेटेड। इसने इमेंसिपेटेड किया किसको, ही इमेंसिपेटेड पोइट्री फ्रॉम द फॉल्स टेस्ट एंड ट्रीफल स्टाइल। जो बुरा स्टाइल था, आर्टिफिशियल स्टाइल से
और फॉल्स टेस्ट से इसने पोइट्री को निकाला और उसको स्टायर दिया, उसके अंदर हीरोइक कॉपलेट इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर वो जो लेटेस्ट मेथड हैं वो लेकर आया कॉम्प्लीमेंट के और ये सारी चीज़ें। और ये पहले क्या था, इसका पहले सेक्ट था, पहले ये था प्रोटेस्टेंट था, यानी ये प्रोटेस्टेंट था। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा इसके बारे में, जो ये कहते हैं ना जैसे कि चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बाज़ औक़ात आप देखें वो पॉलिटिकल लीडर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी, तो ये भी अपनी पॉलिटिकल जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। यानी पहले ये था ओलिवर क्रॉमवेल के साथ, उसकी ब्रेवरी के गीत गाता, उसको एडमायर करता जब वो था तख्त पर। तो जैसे ही ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई और चार्ल्स टू का आना जाना शुरू हो गया, चार्ल्स टू जो है अपनी सीट पर आके बैठ गया, चार्ल्स वन का जो बेटा है, तो चार्ल्स टू जो है जैसे सीट पर बैठा तो ये अपनी पॉलिटिकल जो वैल्यूज़ हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करके चार्ल्स टू के ऊपर भी पोएम्स लिखनी शुरू कर देता है, यानी उसकी एडमिरेशन में कॉम्प्लीमेंट लिखने शुरू कर देता है। तो ये फिर बड़ा उसका जैसे वो चहेता बन जाता है। इसका मज़हब था पहले प्रोटेस्टेंट, ये जहाँ पैदा हुआ है जिस घर में वो कौन थे, प्रोटेस्टेंट थे। ये बाद में रोमन कैथोलिक बन जाता है। और एक बात आपको और बता दूँ, चार्ल्स टू जो था वो रोमन कैथोलिक था, लेकिन पब्लिक को क्या बताता था कि मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो थे उनकी वैल्यूज़ नहीं थी। अब देखें हमारे लोग मोस्टली जो हैं सुन्नी हैं लोग, तो अगर कोई हमारे बीच में कोई अगर शियाज या इस तरह की रखता है थॉट्स, तो बाज़ औक़ात वो भी क्या करते हैं, वो भी बताते हैं कि हम भी सुन्नी हैं, ठीक है, क्योंकि डोमिनेटेड एरिया जो है वो दूसरे सेक्ट का है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो भी उनके साथ मिलकर रहते हैं, मिलजुल के, लेकिन वो अंदर से वही रहते हैं। तो इसी तरह ये भी क्या था, प्रोटेस्टेंट था। प्रोटेस्टेंट को लाइक नहीं किया जाता था, उनको स्टे अवे किया जाता था, उनको दूर रखा जाता था, आइसोलेट रखा जाता था, लंदन से भी कुछ माइल्स के फासले पर रखा जाता था। सो दे आर नॉट अलाउड टू अटेंड द पार्लियामेंट, दे आर नॉट अलाउड टू बी मिक्सड विद अदर प्रोटेस्टेंट पीपल, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड लिविंग अवे फ्रॉम लंदन। So these values were over there, and Charles II was showing to the people he is a Protestant, not Roman Catholic, but exactly his sect was Roman Catholic. उस लोगों को बताता था, उसने शो नहीं होने दिया, लेकिन वो रोमन कैथोलिक था। तो ये भी अपना मज़हब जो है लेटर लाइफ में चेंज कर लेता है, तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का ड्राइडन को सामना करना पड़ता है। ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, फॉर्मलिज्म, इसने फॉर्मलिज्म लेकर आया, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रिसीजन लेकर आया, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल लेकर आया, रियलिज्म लेकर आया, और उसके बाद क्या लेकर आया, वो इंट्रोड्यूस रीजन्स इन द वर्ड्स स्टार्टेड टू बी यूज। फॉर्मलिज्म जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म का पता होगा आपको कि एक स्ट्रक्चर जो है उसके विद इन आपने किसी चीज़ को देखना है, जैसे ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है, लिटरेचर, पेंटिंग, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर है, तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपने उसकी वैल्यूएशन करनी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लेकर आया। What did Dryden do with the restorations? 1660 Dryden celebrated the restorations of the monarchy and the return of the Charles with the Astrea Radix. इसने उसके के लिए क्या लिखा, Astrea Radix, an authentic royalist panegyric. Panegyric भी काइंड ऑफ पोइट्री होती है जो प्रेज के लिए लिखी जाती है। तो इसने क्या किया, ये देखें कि हालांकि वो क्या था, पहले ओलिवर क्रॉमवेल के साथ था, तो जैसे ही ओलिवर क्रॉमवेल जो है उसकी डेथ हुई, तो डेफिनेटली प्योरिटन जो है वो डाउनफॉल का शिकार हुए। तो उसके बाद चार्ल्स टू की वैल्यू बढ़ गई, तो चार्ल्स टू जैसे ही वापस आया तो उसने उसके लिए एक पेंजेरिक जो है वर्क लिख दिया उसकी प्रेज में। ही प्रेज द चार्ल्स टू, तो चार्ल्स टू के पास हो गया। आप जिसकी प्रेज करेंगे वो आपको लाइक तो करने लग जाएगा। तो इसने रेस्टोरेशन एज में क्या किया, एक तो काम ये किया कि ही स्टार्टेड राइटिंग इन द प्रेज ऑफ द किंग। John Dryden was an English poet, literary critic, translator, playwright who was appointed England's first poet laureate in 1668. He is seen as dominating the literary life of the Restoration England to such a point that the period came to be known as a literary circle as the age of Dryden, and this is a skill which would remain with Dryden's and influence his later writing. तो पूरी एज जो है उसके एज नाम से जानी जाती है, और W.H. Auden ने यह भी कहा था कि ये अपनी लिटिल एज का एक मास्टर है, इसको एडमायर किया था। चार्ल्स टू क्रिएटेड कॉमेटी,
जैसे ही चार्ल्स टू आया तो उसने एक कमेटी क्रिएट की, और उस कमेटी के अंदर अ कमेटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, उसने कहा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। ठीक है, वो देखकर आया था, फ्रेंच जो है उनसे इन्फ्लुएंस हुआ उनके वर्क से, तो उसने कहा वी विल वर्क फॉर लैंग्वेज, वर्क फॉर लैंग्वेज, ठीक है, कल्चर, पोइट्री, पेंटिंग, हम इस तरह की वैल्यूज़ के ऊपर, इस तरह की फील्ड में वर्क करेंगे। 1664 में उसने कमेटी बुलाई उसके, और इस एज के जो डोमिनेंट पोएट्स थे और जिन्होंने उस कमेटी के अंदर हिस्सा भी लिया, जॉन ड्राइडन, जॉन एवलेंस, एडमंड वॉलर्स, बिशॉप्स, थॉमस स्प्रैट, तो ये सारे लोग जो हैं उस कमेटी का हिस्सा होते हैं। और ये क्या करने जा रहे हैं फैसला, टू प्रमोट लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, through poetry, to drama, to prose. So they are coming together. These people were in the committee, and John Dryden, you know, he has written compliment, panegyric for sake of the king, Charles II, and he is getting closer to the king in a way to have some development in the field of literature and you know, kind of poetry, prose, drama, like these genres. तो जॉन ड्राइडन, जॉन एवलेंस, एडमंड वॉलर्स, इसकी ले लें, इसका स्नैपशॉट लेना है तो सो दैट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। ये कमेटी बनाएगी और इस कमेटी में क्या चीज़ डिस्कस होगी कि लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट करने के वो कुछ मेथड जो हैं वो प्लान करते हैं। ड्राइडन एज स्टार्टेड एट 1660 बट ही वॉज राइटिंग बिफोर 60, यानी 1660 से तो उसकी एज जो है वो स्टार्ट होती है कि ये उसने डोमिनेट किया है इस पीरियड को, ठीक है, बट ही स्टार्टेड राइटिंग अर्ली। उसका वर्क जो है वो उससे पहले जो था वर्क पब्लिश हो रहा था और काम कर रहा था। ये उसने एज जो है इतनी एज को डोमिनेट किया है, इसमें जितना भी वर्क किया है वो लिखा है वो दूसरे पोएट्स के लिए, एक तो वो क्या है, एक फॉलोअर का काम किया, यानी उसने दूसरों को मॉडल दिया है, लाइक अलेक्जेंडर पॉप को, लाइक दूसरे राइटर जो जॉनसन को। तो ड्राइडन ने दूसरे राइटर्स को क्या दिया, उनको एक मॉडल दिया कि तुमने भाई इस पे वर्क करना है। लेकिन बहुत सारे पोएट्स जो हैं वो इसको क्रिटिसाइज, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो कहता है, वो जैसे इसके वर्क को क्रिटिसाइज करता है। W.H. ऑर्डन्स ग्रेट पोएट ऑफ द लिटिल एज, यानी छोटी सी एज है ना, कितनी एज है इसकी, कितना ये पीरियड लेता है इसमें, तो इतना यानी टाइम भी नहीं है, लेकिन इस लिटिल एज में वो कहता है कि वो अपनी ग्रेट पोएट था अपनी लिटिल एज का। हो सकता है हु कॉल्ड ड्राइडन एज अ ग्रेट पोएट ऑफ द लिटिल एज, तो आप कहेंगे W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने इसको प्रेज किया, वर्ड्सवर्थ ने इसको क्रिटिसाइज किया। जॉन ड्राइडन सपोर्टर चार्ल्स टू। जॉन ड्राइडन पहले क्या था, पहले एक प्रोटेस्टेंट था, फिर बाद में रोमन कैथोलिक हो जाता है। चूंकि चार्ल्स टू का भी जो मज़हब था वो भी एक रोमन कैथोलिक था, लेकिन वो प्रोटेस्टेंट बना हुआ था। चार्ल्स टू जो है उसके आते ही इसने अपनी पॉलिटिकल जो वैल्यूज़ हैं उसके कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उसके ऊपर। पहले वो ओलिवर क्रॉमवेल जो प्योरिटन था, प्योर प्योरिटन था, उसके फॉलोअर जो थे उनका साथी बन जाता है। लेकिन जैसे ही चार्ल्स टू आया तो उसने चार्ल्स टू को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ जो उसकी मोहब्बत थी वो टोटली बदल गई, एंड चेंज हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड राइटिंग फॉर द चार्ल्स टू, और चार्ल्स टू के लिए लिखना शुरू कर दिया इसने। स्नैपशॉट ले लें इसका भी। अब्राहम कोले जो है इन्फ्लुएंस हिम अ लॉट एंड ही वाज अ मेटाफिजिकल, ये एक मेटाफिजिकल पोएट था जो कि जॉन डन की एज का था, उसका नाम है अब्राहम कोले। सो अब्राहम कोले जो है उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अब्राहम कोले इन्फ्लुएंस्ड हिम अ लॉट एंड ही वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट क्या होते हैं, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। जैसे हमारा जॉन डन जो है वो क्या था, एक मेटाफिजिकल, और फिजिकल थिंग जिस्मानी, यानी ऐसी चीज़ जो जिस्म से, बॉडी से बहुत दूर हो, उस जैसे वो बिलीव है, आइडिया है, डेप्थ है, ठीक है, कोई ख़ास किस्म की फ़िलासफ़ी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है। तो इस तरह के जितने भी बिलीव हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, उन पॉइंट्स को जब कोई छूता है या उन पर लिखता है उसको कहते हैं मेटाफिजिकल। तो ये मेटाफिजिकल पोएट थे जो इस तरह की चीज़ों पर लिखते थे। अब्राहम कोले याद रखिएगा, इससे वो इन्फ्लुएंस था। एनस मेरबिलिस,
एनस मैरेबिलिस जो है हॉलैंड वर्सेस इंग्लैंड वार के मतलब एक इसने पोइट्री लिखी थी, और इस पोइट्री में इंग्लैंड जो है इस वार में एक तो इंग्लैंड जो है वो कामयाब हुआ था, उसको उसकी पावर का पता चला था, उसकी स्ट्रेंथ का पता चला था इंग्लैंड को। इंग्लैंड जो है उसमें तरक्की कर रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी इस दौर में। तो इसने ये पोइम लिखी हॉलैंड वार पर और ग्रेट फायर ऑफ लंदन। क्योंकि जब क्राइसिस आता है ना तो कहते हैं कि वन हु फाइट्स इनफैक्ट ही स्ट्रेंथन अस। जो हमारे साथ लड़ता है, जो कोलाइड करता है, जो हमारे साथ वार करता है, वो हमें स्ट्रेंथन करता है। जब लड़ते रहते हैं तो इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो उनको पता चल गया था कि इंग्लैंड इज़ वेरी पावरफुल कंट्री, ठीक है। एक तो उनको अपनी, तो उसने उसी की फिर खुशी में लिखा एनस मैरेबिलिस। जो एनस मैरेबिलिस जो है ये इसने लिखा किसके लिए? अपने कंट्री के लिए, इंग्लैंड और हॉलैंड की वार के ऊपर और द ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो क्राइसिस उसके ऊपर आया था। एनस मैरेबिलिस वाज रिटन बाय द जॉन ड्राइडन। द इवेंट ऑफ द हॉलैंड वार एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द लंदन। ही इज़ एंजॉइंग एंड फीलिंग द प्लेजेंट इन एनिस मैरेबिलिस। एनिस मैरेबिलिस के अंदर वो बड़ा प्लेजेंट फील करता है कि किस तरह इंग्लैंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है, पावरफुल है, ग्रेट है, फेस किया है उसने, ठीक है। वन हु फाइट्स विद आर्स इनफैक्ट स्ट्रेंथन्स आवर पावर्स। इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरेट, नाम है ड्राइडन। जॉन ड्राइडन चेंज हिज सेक्ट प्रोटेस्टेंट्स, यानी वो प्रोटेस्टेंट से क्या बन गया? चार्ल्स टू के साथ वो कंप्रोमाइज़ करता है। ओलिवर क्रॉमवेल बेसिकली वो प्योरिटन था, लेकिन प्योरिटन वैल्यू से वो शिफ्ट कर गया और वो क्या बन गया? उसने अपना सेक्ट चेंज कर लिया, चेंज हिज सेक्ट। यानी वो प्योरिटन से फिर एक तो उसने अपना सेक्ट भी चेंज किया, यानी वो पहले प्योरिटन था, उसके बाद बहुत कैथोलिक बन गया। और हम ये भी देखते हैं कि उसने क्या किया, उसने अपनी पॉलिटिकल वैल्यूज़ को भी कंप्रोमाइज़ किया। ओलिवर क्रॉमवेल को छोड़ के वो किधर आ गया? उसके बाद इसके साथ आ गया, चार्ल्स टू के साथ। एब्सोलम्स एंड आर्चीटोफल या आर्कीटोफल इसको कहते हैं, 1681 में इसने लिखा है। दिस पोएम एक्सप्लेन अबाउट द चार्ल्स टू एंड हिज एक्टिविटी। अच्छा, एक उसने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया चार्ल्स टू किस तरह से, क्योंकि ये मजहबी भी था, रिलीजियस पर्सन भी था ड्राइडन। तो ड्राइडन ने क्रिटिसाइज़ किया है किसको? चार्ल्स टू को, उसकी वलप्चुअस लाइफ को, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ को, उसके अफेयर को, इलेजिटिमेट जो उसने बनाए हुए थे और इलेजिटिमेट जो उसकी औलाद थी, सन थे, उन सब को, कि चार्ल्स टू जो है वो कभी जो है अपना वारस पैदा नहीं कर सकेगा। चार्ल्स टू के की सल्तनत के बाद, क्योंकि ये लास्ट लेटर डे होंगे चार्ल्स के जब वो मर रहा होगा, तो इसमें वो क्या डिस्कस करता है कि अपनी इस पोइट्री के अंदर, आर्चीटोफल के अंदर वो बताता है 1681 में उसने लिखा, उसने कहा कि चार्ल्स टू है जो वो बड़ा वलप्चुअस किंग था और उसके बहुत सारी 1000+ मिस्ट्रेस थी, बहुत सारे उसके इलेजिटिमेट बच्चे हैं, लेकिन ये इलेजिटिमेट बच्चे कभी उसके वारस नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो इलेजिटिमेट है। साथ वो जेम टू को भी क्रिटिसाइज़ करता है, जेम टू को बताता है कि जेम टू कभी भी वारस नहीं बन सकेगा या उसके बाद सक्सेसर नहीं बन सकेगा क्योंकि वो एक रोमन कैथोलिक है। और रोमन कैथोलिक चर्च के जो लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं या उनके जो हामी हैं कैथोलिसिज्म के, उनको कभी भी प्योरिटन नज़दीक नहीं आने देंगे गवर्नमेंट के। तो जेम टू के बारे में वो पहले ही इसके अंदर प्रेडिक्शन करता है कि ना तो जेम टू जो उसका ब्रदर है वो बन पाएगा, ना चार्ल्स टू जो है अपना वारस पैदा कर सकेगा, बिकॉज सारे बच्चे जो उसके हैं वो इलेजिटिमेट हैं और इलेजिटिमेट जो होते हैं उनको जायदाद से सक्सेसर नहीं बनाया जाता। उस दौर का एक और पोएट जो था वो बड़ा प्रोमिनेंट था, उसका नाम है जॉन विल्मोट। जॉन विल्मोट जो है इसके लिखा है मेम्स डिबंची। मेम डिबंची जो है ये इसने लिखा है द मेम्ड डिबंची। मेम डिबंची जो है वो लिखा है जॉन विल्मोट ने। और अनदर प्रोमिनेंट पोएट ऑफ द ड्राइडन एज का बड़ा प्रोमिनेंट दूसरा प्रोमिनेंट पोएट है, इसका नाम याद कर लें, जॉन विल्मोट। जॉन विल्मोट जो है वो क्या था? मेटाफिजिकल, द कैवेलियर्स एंड अगस्टन।
उसके बाद ही यूज्ड मिक्स स्टाइल वाइल राइटिंग द पोएट्री। ये एक तो मेटाफिजिकल स्टाइल जो है जिसमें मैंने आपको बताया जैसे जॉन डन इस्तेमाल करता है, कंसीट और फर फेच्ड इमेजेस, और उसके बाद रेट्रिक्स, अकल, सेंस और यूनिफिकेशन ऑफ थॉट और सेंसिबिलिटी, इन चारों चीज़ों को मिला के मेटाफिजिकल जो पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा डिस्कस करता है, फर फेच्ड इमेजरी को लाता है और उसके अंदर सेंस के थ्रू करता है, साथ पैशन भी मिलाता है और यूनिफिकेशन ऑफ थॉट एंड सेंसिबिलिटी दोनों को मिलाता है, और फर फेच्ड इमेजेस लाता है, कंसीट यूज़ करता है, कंपैरिजन बहुत करता है, रेट्रिक यूज़ करता है, पन यूज़ करता है, हाइपरबली यूज़ करता है, पैराडॉक्सिकल एलिमेंट यूज़ करता है, ही इज़ प्लेइंग विद द वर्ड, लफाज के साथ खेलता है जैसे बड़े उसको बड़ा कमांड हासिल हो लैंग्वेज पे। तो ये सारी चीज़ें ये जॉन डन का जो मेटाफिजिकल स्टाइल है वो अपनाता, क्वेलियर पोइट का जो प्रेजिंग का स्टाइल था जो किंग को करते थे वो अपनाता, और गस्टन एज की जो रेट्रिक जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो मिलाता। तो ये मिला के पोइट्री कर रहा था जॉन वेलमट। तो ये भी उसी एड का पोइट है।